आज ये खास दिन है और बहुत खास दिन को बनाने के लिए हमारे सामने आपके सीनियर जो है श्रीकांत सिंह और आदित्य कुमार मिश्रा। तो सबसे पहले इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। आप सभी के टीचर्स आए हैं तो इनके लिए एक बार ताली बजाइए। तो सबसे पहले हमारे सामने डॉक्टर पुनीत सर हैं, ये हम सभी के शिक्षक हैं और इनको हम चाहेंगे कि भेंट देकर के आदित्य कुमार मिश्रा जी स्वागत करें। भाटिया मैम, उनका स्वागत हम श्रीकांत जी से चाहेंगे। जिनका स्वागत है आदित्य कुमार मिश्रा जी से स्वागत करें। आप सभी यहाँ आए हैं, जितने लोग दर्शक के रूप में आए हैं वो भी, और जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी का भी एक बार पुनः स्वागत किया जाता है। अब मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीकांत सिंह और आदित्य कुमार मिश्रा जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Hello everyone, my name is Aditya Kumar Mishra. My name is Shrikant Singh. So sir, a very warm welcome to all of our professor. So here we all are in a very auspicious occasion or a very interesting event of Q&A and advertisement curation. So we both are pleased to stand here in front of a personality to whom we admire a lot. And sir and ma'am, it is because only of you that we are confident enough to stand here and address all these things. So it's without any delay, it's a request from respected judges that please speak a few words to our participants to boost their capability, and then we will proceed further. तो इस तरीके की जो भी क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव आइडियाज है, आप लोग लेकर के आए और उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बना। आप लोगों के एफर्ट्स देख के मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। First of all, I will thank you all for organizing this program and for giving me this opportunity to get a seat along with my teacher. All the very best and thank you for arranging this program. Now without any further delay, we would like to start with the first round, which is the starter round of the quiz, where every correct answer will be awarded with 1 mark. Before that, we have a small note for all participants. You must give all our answers confidently without any hesitation because Every artist was once an amateur. So the first round is going to start with group 1. So basically we will ask question from group 1, that is the starter level, and this is a very basic question. So please be calm. who is the father of scientific principles of management? I repeat, Who is the father of scientific principles of management? It's F.W. Taylor. Correct answer. हमारा ग्रुप 3 के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है हु इज द को-फाउंडर ऑफ ट्विटर? He is CEO of Twitter. He was CEO of Twitter. आंसर गलत है, सही आंसर है जैक डॉर्सी। तो ग्रुप 3 को पहले क्वेश्चन 0 मार्क्स अवार्ड होते हैं। good effort. Next question is for group 4. What is another name of World Bank? I repeat, what is another name of World Bank? Full form. इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड एकदम सही. करेक्ट आंसर। और ग्रुप 5 का पहला क्वेश्चन स्टार्टर राउंड का है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक? OPEC. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक? It's something oil producing or प्रॉपर फुल फॉर्म होनी चाहिए। oil producing countries. नहीं, ये गलत आंसर है। राइट आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बट जी कॉन्फिडेंस For group 6, SEBI was established in which year and its full form? I repeat, SEBI was established in which year and its full form?
SEBI was established in which year? SEBI was established in which year and its full form? Security Exchange Board of India, established in 1994. 1992. गलत है। सही आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। बट आपका सही था, फुल फॉर्म आपने सही बताई, बट ईयर थोड़ा सा गलत हो गया। और आपने सीखा कुछ। अगला क्वेश्चन ग्रुप 7 के लिए है। तो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? SAARC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? कोई बात नहीं, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्टिल अब ग्रुप 8 का रेडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? I repeat, what is the full form of KYC? Take your time. Know your customer. सही है। ग्रुप 8 का आंसर है। ग्रुप 9 का पहला क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन गॉट कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग? आई एम रिपीटिंग, इन विच ईयर द प्लानिंग कमीशन गॉट कन्वर्टेड इनटू नीति आयोग? More discussion please. 2015. करेक्ट आंसर है 2015। Next question is for group 10. Who is the founder of OYO? OYO. आंसर तो पढ़ो। सही है। मेरा ग्रुप 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप 11। तो इनकम यू गेट फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी इन गिवन टाइम इज नोन एज। आई एम रिपीटिंग, इनकम व्हिच यू गेट फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी इन अ गिवन टाइम इज नोन एज। बिजनेस एक्टिविटी इट इज रेवेन्यू। सही है। आंसर है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन का राउंड कंप्लीट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। भी बेस करेगा। फर्स्ट राउंड के सेकंड क्वेश्चन फॉर ग्रुप 7। तो ग्रुप फर्स्ट से ध्यान से सुनना। Who is the third richest person in the world as per the latest report of Forbes? I repeat, who is the third richest person in the world as per the latest report of Forbes? It's Jeff Bezos. Wrong answer. The correct answer is Gautam Adani. अब ग्रुप 2 के लिए सेकंड क्वेश्चन, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? अपना टाइम लेके आंसर दे। हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? Elon Musk. ये गलत आंसर है। ये बहुत रिसेंट में अपडेट हुआ। बर्नार्ड अर्नोल्ट ही इज द रिचेस्ट पर्सन। Now for group 3, do give your attention please. Which company has the highest share price in India? I repeat, which company has the highest share price in India? Reliance. No, it's wrong. The right answer is MRF. अगला क्वेश्चन जो ग्रुप 4 के लिए है वो है व्हेन द आरबीआई गॉट नेशनलाइज्ड। खड़े होकर ग्रुप लीडर डेट। डेट के साथ आंसर। At least try. Which guess? 1949. करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1940। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये कंप्लीट आंसर चाहिए था। Now for group 5. Who owns the company board? I repeat, who owns the company board? अमन
क्वेश्चन है वो इन विच ईयर द लखनऊ यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड? 1920. Right answer. Now for group 7. Which are the two most famous tea startup of India? I repeat, which are the two most famous tea startup in India? बोलो। Tata tea? हाँ? Tata tea? The right answer is ऑडियंस से पीछे देखने कोई आंसर आता है? मैं सवाल का बताओ ऑडियंस से पीछे ग्रुप 8 के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ एसबीआई व्हिच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 1955. थोड़ा लाउड 1955. Which is the biggest economy in the world? I repeat, which is the biggest economy in the world? यूएस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो ग्रुप 10 के लिए है वो है करंटली हाउ मेनी एरियाज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक एंटरप्राइज? हाउ मेनी एरियाज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक एंटरप्राइज? You are running out of techniques. Three. करेक्ट आंसर है आपका 2 सेक्टर्स। Next question is for group 11. Market where the exchange of currencies take place. I repeat, market where the exchange of currencies takes place. Foreign exchange? Foreign exchange market. कंप्लीट आंसर। Complete answer बोला भाई। ठीक है। Now, अगेन राउंड 1 का जो थर्ड क्वेश्चन का सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। तो जो ग्रुप 1 के लिए थर्ड क्वेश्चन है वो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ आरबीआई वाज। क्वेश्चन का आंसर सुनो, एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ आरबीआई वाज 1st of April 1935. करेक्ट आंसर। the next question is for group 2. ध्यान से, full form of HDI and who publishes it? I repeat, full form of HDI and who publishes it? Human Development Index by WHO. आपका पहला पार्ट सही था पर दूसरा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन पे 0 मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी को मालूम है? एचडीआई कौन पब्लिश करता है? कौन पब्लिश करता है? मैंने कैसे किसी को इसका राइट आंसर इसका फॉर्म है ह्यूमन नहीं यूनाइटेड इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन इंडिया द कॉइन्स आर इशूड बाय। करेक्ट आंसर। The next question is for group 4. Do concentrate. Which company is the largest company of India? Which company is the largest company of India? Reliance. Sir, answer है। ग्रुप 5 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है when this startup India initiative was announced by honorable prime minister. I'm repeating, when this startup India initiative was announced by honorable prime minister. Slightest miss है 2015 है correct answer. Perfect, right here. The next question is for group 6. What is the full form of EMI? I repeat, what is the full form of EMI? Electronic Monetary Index. तो ये आंसर गलत है, कोई गेस कर सकता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका आंसर है। अब ग्रुप 7। ग्रुप 7 के पार्टिसिपेंट है, उनके लिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? एक मिनट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। करेक्ट आंसर है। The next question is for group 8. Ready? What is the full form of ASEAN? ASEAN. What is the full form of ASEAN? ASEAN. What is the full form of ASEAN? कुछ few seconds और लड़ा तुमको आता है, but try करो। ट्राई करो, बोलने में हेजिटेट मत करो। बोलोगे ना? हेलो। बात नहीं करो, गिरते रहने चाहिए, बोलने तो सही जाता है। एडवांस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में था तो आंसर Association of Southeast Asian Nations. अगला क्वेश्चन जो ग्रुप 9 के लिए है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? SAIL सेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल? I don't think that. Group, you are running out of the time. No idea. Any guesses from audience? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया? गौतम अडानी। The next question is for group 11. Ready? Which is the first India-based e-commerce shopping platform? I repeat. Which is the first India-based e-commerce shopping platform? आराम से सोचो आंसर दो, ठीक है? रिलायंस। हाँ? रिलायंस। इधर से मालूम है? फ्लिपकार्ट। The correct answer is फ्लिपकार्ट। तो ग्रुप 1 के लिए फोर्थ क्वेश्चन है और राउंड 1 का लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप 1 के लिए वो है हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रुप 3 के लिए है और ग्रुप 2 का फोर्थ
demonetization began on? Or when was the demonetization of Indian rupees has happened? It is 8 November 2016. Who is the current governor of the RBI? I repeat, who is the current governor of the RBI? अगला और ग्रुप 4 का राउंड 1 का लास्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड्स विद व्हिच वर्ड एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड्स विद व्हिच वर्ड नेम ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड्स विद व्हिच वर्ड लिमिटेड करेक्ट आंसर There are how many branches of economics? I repeat, there are how many branches of economics? Take your time and give answer. आराम से. It's microeconomics and macroeconomics. Right answer. अब ग्रुप 6 के लिए जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हिच इज द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आई एम रिपीटिंग व्हिच इज द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज Just discuss and take the time and then give a proper answer. National Stock Bombay Stock Exchange. Next question is for group 7. Copyright is used to protect the content. ध्यान से सुनना. Copyright is used to protect the content and patent is used to protect what? I repeat, copyright is used to protect the content and patent is used to protect what? Take your time. ट्रेडमार्क हाँ? ट्रेडमार्क सही है. Which type of company issues shares to general public? Public company. या फिर try करो. Complete answer. Public undertakings. सही है. Correct. The next question is for group 9. A person who is the exclusive owner of a business is known as. I repeat, a person who is the exclusive owner of a business is known as. अच्छा ऑडियंस डिस्कस नहीं Repeat the question. Bia, repeat the question. A person who is the exclusive owner of a business is known as. Chief Executive Officer. आप ऊपर सोच रहे हो आप लोग बेस पे सोच रहे हैं शेयर ऑडियंस who is the exclusive owner जो ग्रुप 10 के लिए लास्ट क्वेश्चन है वो है द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट कंपनीज डज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट कंपनीज डज इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज करेक्ट आंसर
the next question is for group level. What is the full form of FARA? I repeat, what is the full form of FARA? FARA. Foreign Exchange Reserve Authority. Foreign Exchange Reserve Authority. Those who correct answer ग्रुप जो पहला राउंड था स्टार्टर राउंड 1 मार्क्स उस क्वेश्चन ईच आंसर के लिए थे, वो राउंड खत्म होता है। हर ग्रुप्स को 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए एक बार एप्रिसिएशन दें। और इसी के साथ पहला राउंड ये होता है। अब आप लोगों की क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो आप लोग बहुत बुक्स में लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 2 3 ऐसे करके बुक्स में क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेम चीज होने वाली है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होने वाली है। हर ग्रुप्स के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो अब थोड़े से डिफिकल्ट होंगे और इस ग्रुप के अंदर हर क्वेश्चन को हर राइट आंसर को 2 मार्क्स मिलेंगे। ये 2 मार्क्स का राउंड है, ठीक है। अब अगर ऐसा ये बोल रहे हैं कि थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगी तो कोई डरना मत कि अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गई, ठीक है, नॉर्मली आंसर देना, जैसे अभी तक दे रहे हैं।